Good morning, beta. Beta, in our last lecture, we discuss regarding the addition of the matrices, and beta today we discuss addition, subtraction, and scalar multiplication of the matrix. So, in addition of matrices, let us suppose students we want to add a two matrices. Then, beta, I said that there are two conditions for the addition of a matrices. First is that the order of the matrix ए एंड बी शुड बी सेम. ठीक है बेटा, अगर दो मैट्रिसेस आप लोग ऐड कर रहे हो तो दो मैट्रिसेस कब ऐड होंगे बेटा? लेट अस सपोज यू वांट टू ऐड द मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी. तो बेटा फर्स्ट कंडीशन इज दैट दीज टू मैट्रिसेस आर एडेड if the order of the matrix A and the order of the matrix B are same. ठीक है, then the addition is possible. ठीक है, after checking the order of both the matrices, then beta we add the corresponding element. That means the element at a position row 1 row column in a first matrix is added to the element in the same position in a matrix B. For example, let us suppose that we have the matrix A equals to, we have the matrix A equals to 1 2 9 5 minus 6 3 2 1 3. And but our B matrix is minus 5 minus 5 2 minus 5 minus 5 2 1 2 3 9 6 2 1. And beta, if we want to add the matrix A and the matrix B, then beta to add the matrix A and matrix B, the corresponding element, first beta check karo the order of matrix A and the order of the matrix B are same, because beta number of rows and number of columns in both the matrix are equal to 3 and 3. So beta, now after checking the order, now we add beta. Vandana, Simran, Yuvika, beta mics off karo. Students, switch off your mics. Now beta, if we want to add these two matrices, then first element is added to the first element, because the position of this minus 5 and 1 are same. So this is equals to 1 minus 5. Then next is 2 plus 2. Next is beta, if we add 9 plus 1. 9 plus 1, our next element is after 9 plus 1, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा? नेक्स्ट एलिमेंट, जस्ट बेटा वेट फॉर अ मिनट, पार्टिसिपेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं. बेटा बी ऑन अ टाइम प्लीज. नेक्स्ट एलिमेंट इज 5 plus 2 minus 6 plus 3 3 plus 9. And beta here is 2 plus 6 1 plus 2 3 plus 1. Now beta add these elements to get the addition of two matrices A and B. Now beta, if I add these two matrices, our first element is minus 4, then 2 plus 2 is 4, 9 plus 1 is 10, next element is 7, next element is minus 3, next element is 12, next element is 8 3 and 4. So beta, this is a addition of the two matrices. So beta, if we want to add two matrices, firstly we check the order of matrices. If the order of the matrices is same,
if the order of the matrices is same, then beta we add the corresponding elements for the addition. Now beta similarly we can do the after addition. Next we discuss the subtraction of a two matrices. Next beta we discuss the subtraction of two matrices. Subtraction of two matrices means beta we firstly, first condition is same. Firstly we check the order of the two matrices, then after checking the order we subtract the corresponding elements. We subtract the corresponding element. Let us suppose students we want to subtract a and b. Beta we have the two matrices A and B. Beta A and B, first condition is that, first condition is for the order of the matrices. Beta if the order of matrices are same, then we subtract the matrix. And beta subtraction rule is same, we subtract the corresponding element. Let us suppose beta we have the matrix A equals to -1 3 9 6, and beta we have the matrix B equals to 2 3 1 6 9 5 2 1 9. ठीक है. Now बेटा if I want to subtract A and B, अब बेटा मैं जिस स्टूडेंट का नेम लूंगी वो अपना माइक ऑन करेगा. ठीक है बेटा, जिस स्टूडेंट का मैं नेम लूंगी वही माइक ऑन करेगा. अतुल शर्मा. अतुल शर्मा. यस मैम. बेटा जो मैंने मैट्रिसेस बोर्ड पे लिखे हैं, क्या ये पॉसिबल है सब्ट्रैक्शन? नो मैम. क्यों बेटा? Why? ऑर्डर सेम नहीं है. Because beta order of A and B is not same, so this subtraction is not possible. Very good beta. Now next beta, if I can write this matrix, beta if I can write the matrix B equals to 2 3 6 9. Now beta if I find A minus B, now beta to find A minus B, now beta check karo order of two, A and B are same. Now the subtraction is done. 1 minus 2, 3 minus 3, 9 minus 6 and 6 minus 9. So beta my answer is -1, -2 is -3, 3 minus 3 is 0, 9 minus 6 is 3 and 6 minus 9 is -3. So this is my answer after the subtraction of the two matrices. Now beta after discuss regarding the addition and the subtraction, now beta we discuss our next is scalar multiplication. Scalar multiplication. Now beta scalar multiplication, now we discuss scalar multiplication. Scalar multiplication. Now beta scalar multiplication means we multiply our matrix by a some scalar or by a some constant quantity. Let us suppose beta you have a matrix A. You have a matrix A, or beta your matrix A is of the type Aij M cross N. Your matrix A is of order M cross N. Now beta because we want to do a scalar multiplication, let us suppose beta here I want to multiply with the scalar k. बेटा मैं यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ? विद द स्केलर k. तो बेटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे लिखते हैं? k into a. That means our matrix A is multiplied with the scalar k. तो बेटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे? वी मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट विद दैट स्केलर. ठीक है बेटा, आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा? सेम. वी जस्ट मल्टीप्लाई. बेटा हम लोगों ने सिर्फ क्या करना है कि हम लोगों ने जो हमारा मैट्रिक्स है उसको उस बेटा ये माइक किसने ऑन किया? बेटा किसी ने माइक नहीं ऑन करना है.
सो बेटा फॉर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जैसा बेटा मैंने आपको बताया कि हम मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को उस स्केलर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। नाउ बेटा लेट अस सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स ए। बेटा मेरा ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 2 -1 एंड 3, ठीक है। आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स विद द स्केलर 3, तो बेटा हम इसको कैसे लिखेंगे, 3a equals 2. Now beta scalar multiplication means we multiply each element with that scalar. अगर बेटा each element को उस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 3 बेटा मेरा आंसर क्या होगा, 3, 3 into 2 6 minus 3 and 9. So this is my scalar multiplication. Scalar multiplication means beta we multiply our matrix with the some constant quantity, and beta to multiply with matrix with a constant quantity we just multiply each and every element with that constant. We multiply each and every element with that constant, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, मेरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब बेटा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, आज मैं आपकी अटेंडेंस, आपकी जो पार्टिसिपेंट्स लिस्ट आ रही है, मनप्रीत सिंह माइक ऑफ करो बेटा, मनप्रीत सिंह। तो बेटा आपकी जो अटेंडेंस है वो मैं कैसे लूंगी, आपके बेटा स्क्रीनशॉट जो नेम्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। जैसे बेटा हरकमल कौर CSC लिखा आ रहा है, इंदर कुमार CSC लिखा आ रहा है, बेटा मैं इसके स्क्रीनशॉट लेके ही आपकी अटेंडेंस लूंगी, ठीक है। तभी बेटा हम बार बार अनाउंस करते हैं, बेटा आप लोगों ने अपना पूरा नाम लिख के विद ब्रांच नेम ही क्लास में एंटर करना है, ठीक है। तो बेटा वैसे तो आप लोगों ने ठीक लिखा हो, सभी ने नाम लिखे हैं, विद ब्रांच लिखे हो, दैट्स वेरी गुड बेटा। तो आपकी यहाँ से मैं अटेंडेंस लूंगी, ठीक है। तो अटेंडेंस बेटा आज मैं आपकी एक एक का रोल नंबर बोल के नहीं लूंगी, क्योंकि फिर आप बहुत उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो। बेटा इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लूंगी, ठीक है। और बेटा नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट बेटा हमारा क्या होगा, आफ्टर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ बेटा आज हम डिस्कस करेंगे सम न्यूमेरिकल्स दैट आर वेरी वेरी इजी। आप लोगों को बेटा शायद आते ही होंगे, ठीक है। अगर बेटा कोई डाउट हुई तो हैंड रेज कर देना, मैं आपका आंसर दे दूंगी, ठीक है। बेटा अगर डाउट होगी किसी भी न्यूमेरिकल में या जो भी बेटा मैं करवा रही हूँ, तो आप हैंड रेज कर देना, मैं उसका आंसर आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। अब बेटा हम क्या कर रहे थे, बेटा मैंने आपको बताया हम क्या डिस्कस करेंगे अभी। अब बेटा हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल, बेटा मैथ्स के लेक्चर में आप लोगों ने साथ में कॉपी लेके बैठना है बेटा, ताकि जो भी न्यूमेरिकल हो आप साथ साथ में उसको सॉल्व करो, ठीक है। अब बेटा फॉर द फर्स्ट न्यूमेरिकल, बेटा मैं स्टेटमेंट बोलूंगी, आप लोग मेरे साथ साथ स्टेटमेंट भी नोट करोगे, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट जो मेरा न्यूमेरिकल है, माय फर्स्ट न्यूमेरिकल इज कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस, कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 3। बेटा अटेंडेंस के लिए मैं स्क्रीनशॉट ले चुकी हूँ, जितने बच्चे पहले प्रेजेंट थे उनकी अटेंडेंस हो गई है बस, ठीक है। तो बेटा हम करेंगे क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 3 matrix, 3 cross 3 matrix whose elements are given by, whose elements are given by, whose elements are given by Aij equals to 2i minus 3j, Aij equals to 2i minus 3j, ठीक है। तो बेटा now find to find a matrix, the order of the matrix is 3 cross 3, the order of the matrix is 3 cross
3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 मीन्स 3 rows and 3 columns. Then बेटा to solve this question, बेटा firstly हम लोग मैट्रिक्स से सपोज करेंगे let the matrix A equals to, बेटा let the matrix A equals to कैपिटल A, मैट्रिक्स की नोटेशन बेटा हम कैपिटल लेटर्स में लेते हैं, कैपिटल A इक्वल्स टू AIJ 3 क्रॉस 3. अब बेटा अगर आप रफ वर्क में करोगे इसको, जहां आप बेटा पहले सोचोगे तो इसमें कितने रोज हैं, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. बेटा रफ वर्क में इसका एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके चेक कर लेते हैं बेटा जी क्या होगा. तो बेटा मेरा मैट्रिक्स क्या होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A23, A31, A32 and A33. So बेटा this is the matrix which we want to construct, जिसमें बेटा 3 rows हैं and कितने columns है, 3 columns. Then बेटा to find your first element is A11. A11 means बेटा first row and first column. तो बेटा A11 find करने के लिए अब हम बेटा सारे एलिमेंट्स फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्या है बेटा, AIJ इक्वल्स टू AIJ इक्वल्स टू 2I minus 3J. Now beta firstly we find A11. To find A11 we put the value of I is 1, J is also equals to 1. So beta this is equals to 2 minus 3, that is equals to minus 1. Next beta we find the next element A12. Now to find the A12 means first beta this element, A12 is our this element. Now beta to find A12 we put the value of I is 1 and J equals to 2. So this is equals to 2 into 1 minus 3 into 2. So beta if we solve this, this is equals to 2 minus 6, that is equals to 2 minus 6, that is equals to minus 4. Next beta we find A13. A13, to find the value of A13, I is 1 and J equals to 3. So this is equals to 2 into 1 minus 3 into 3, 2 minus 9. So beta this is equals to minus 7. So beta this value is equals to minus 7. Now beta after finding the elements of first row, now beta we move toward the second row. ठीक है, अब बेटा हम कौन से एलिमेंट फाइंड करेंगे, सेकंड रो के. ठीक है, now beta to find the elements of our second row, बेटा हम वैल्यूज पुट करेंगे. जैसा कि बेटा आपको पता है सेकंड रो में मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A21 का मीनिंग क्या है बेटा, मैं I की वैल्यू क्या पुट करूंगी, 2 और J मेरा कितना होगा 1. 2 into 2 minus 3 into 1. So बेटा this is equals to 4 minus 3, that is equals to 1. Similarly बेटा आप क्या फाइंड करोगे, A22 I is 1, J is 1, 2 into 2 minus 3 into 2. तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, that is equals to minus 2. Similarly बेटा A23 फाइंड करोगे तो बेटा ये किसके इक्वल आएगा, 2 into 2 minus 3 into 3. So beta this is equals to 2 into 2 4 minus 9 is minus 5. So beta similarly now we can find A31, A32 and A33. बेटा जल्दी से अपनी कॉपीज पे सॉल्व करो. A31, A32 and A33 किसी की भी टर्न आ सकती है विद इन 1 or 2 minutes. बेटा बी क्विक, जल्दी से बेटा जी सॉल्व कीजिए और फाइंड कीजिए. बेटा मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ कि बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है, बी क्विक. किसी ने माइक नहीं ऑन करना बेटा,
मैं जिसका नाम लूंगी वही स्टूडेंट माइक ऑन करेगा। रजत माइक ऑफ करो बेटा। बेटा जल्दी से कैलकुलेशन करो, होगी अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशंस तो। ओके बेटा मैं माइक ऑन करने जा रही हूँ, मैं जिस स्टूडेंट का नाम लूंगी वो आंसर देगा बेटा। हाँ जी भवनीत कपूर, भवनीत कपूर। यस मैम। हाँ जी बेटा। यस मैम। बेटा चैट बॉक्स में आप लोगों ने कुछ नहीं लिखना जब तक मैं नहीं बोलती, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग ठीक ना है डन, ठीक है। भवनीत बताइए बेटा ये 3-1 कितना आ रहा है? मैम। 3। ये 3-1 कितना आ रहा है? 3, ठीक है बेटा माइक ऑन मैम 3। कर। ओके ठीक है। ओके बेटा नेक्स्ट माइक ऑन करो गुरलीन। गुरलीन यस मैम। बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A32? 0 मैम। 0, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा जी माइक ऑन कीजिए, मैं नाम बताती हूँ। सिमरन कौर, सिमरन कौर। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा -3. -3, वेरी गुड बेटा। 3. So बेटा आफ्टर फाइंडिंग ऑल दीज एलिमेंट्स, बेटा अब चेक कीजिए हम लोगों ने सारे के सारे एलिमेंट फाइंड कर लिए। नाउ फ्रॉम दीज एलिमेंट्स वी कैन राइट अवर मैट्रिक्स ए, ठीक है, विच वी वांट टू फाइंड। जो बेटा हमें मैट्रिक्स रिक्वायर्ड था आफ्टर फाइंडिंग द एलिमेंट्स। अब बेटा मेरा मैट्रिक्स ए क्या होगा? नाउ माय मैट्रिक्स ए इज, बेटा फर्स्ट एलिमेंट हम लोगों ने क्या फाइंड किया था? -1, नेक्स्ट इज -4, -7, नेक्स्ट बेटा क्या है हमारा एलिमेंट? 1, -2, -5, 3, 0 and 3, which is our required matrix of order 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो बेटा ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था मैट्रिसेस का, ठीक है। नाउ बेटा नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। write down the statement if question is that if x min matrix लिखो बेटा, matrix is of order 2 cross 2 x minus y, second element is 2x minus y, 2x plus z, 2x plus z, 3z plus w, 3z plus w equals to, this is equals to -1, 0, 5 and 13. Find x, y, z and w. Find x, y, z and w. Find x, y, z and w, ठीक है। Now बेटा चेक करो, two matrices are given and the order of the matrices is सेम, ठीक है बेटा। ऑर्डर दोनों का है 2 क्रॉस 2 और बेटा दोनों मैट्रिक्स भी क्या गिवन है? दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है? इक्वल। नाउ बेटा वी नो दैट टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है बेटा। हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में डिस्कस किया था कि बेटा दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं? अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं? इक्वल। तो बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे A11 पोजीशन पे क्या है? x माइनस वाई। तो बेटा मेरा x माइनस वाई किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल्स टू -1। एंड बेटा सेकंड अगर मैं लिखूं 2x प्लस जेड, 2x प्लस जेड किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल्स टू 5। एंड बेटा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू किसके होगा? 0 के। 3z प्लस w बेटा किसके इक्वल होगा? 3z
प्लस W किसके इक्वल होगा 13 के इक्वल। अब बेटा आपके पास कितनी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बेटा नंबर ऑफ इक्वेशन आर 4, ऑल्सो बेटा नंबर ऑफ जो हमने वेरिएबल फाइंड करने हैं वो भी कितने हैं, 4। बेटा आप लोगों को कोई भी मेथड आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, बेटा उसकी हेल्प से आप लोग क्या फाइंड कर सकते हो बेटा जी, आप लोग फाइंड कर सकते हो एक्स, वाई एंड जेड। अब बेटा अगर आप लोग चेक करोगे, मैं फर्स्ट इक्वेशन देखूं और थर्ड इक्वेशन, बेटा फर्स्ट और जो मेरी थर्ड इक्वेशन है वो दोनों किसकी टर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो बेटा फर्स्ट मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या करूंगी, सॉल्व। अब बेटा चेक करो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, और बेटा मेरी थर्ड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब बेटा अगर मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करूं, ये साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दिस साइन इज अ पॉजिटिव, बेटा जीरो को कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब बेटा ये क्या है मेरा, माइनस वाई, दिस इज माई प्लस वाई, दीज प्लस वाई माइनस वाई आर कैंसल आउट। बेटा ये क्या हो गया, कैंसल आउट। यहाँ पे बेटा क्या आ गया, x माइनस 2x। बेटा x माइनस 2x किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस x के। एंड बेटा -1 माइनस 0 किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। सो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, नाउ बेटा द वैल्यू ऑफ x, बेटा मेरी कितनी आ गई, वैल्यू ऑफ x इज 1। सो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1। अब बेटा इस x की वैल्यू चाहे मैं बेटा फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं, चाहे सेकंड में पुट कर, सॉरी फर्स्ट में पुट करूं, चाहे थर्ड में पुट करूं, मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। बेटा मैं चूज करती हूँ इक्वेशन 1। तो बेटा इक्वेशन 1 में अगर मैं वैल्यू पुट करूं 1 माइनस वाई इक्वल्स टू -1, तो बेटा मेरा माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, -1 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो बेटा मेरे y की वैल्यू क्या आ गई, द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब बेटा आप लोगों ने, आपके पास दो वैल्यूज फाइंड होगी x और y, उसके बाद बेटा आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, z एंड w। अब बेटा z की वैल्यू फाइंड करो फ्रॉम द इक्वेशन 2। बेटा फाइंड करो z की वैल्यू, मैं किसी से भी माइक ऑन करवा के पूछ सकती हूँ, बेटा फाइंड करो वैल्यू ऑफ z। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, फाइंड कीजिए वैल्यू ऑफ z। बेटा जो स्टूडेंट्स लेट क्लास में आते हैं, जैसे बेटा अभी मैंने स्टूडेंट को एंटर करवाया राहुल महे, ठीक है बेटा, किसी ने लेट क्लास में नहीं आना, बी ऑन अ टाइम। ठीक है, क्योंकि बेटा ऐसे बार बार स्टूडेंट्स एंटर करते हैं, लीव करते हैं क्लास, तो बेटा फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। प्लीज बेटा जी बी ऑन अ टाइम। अगर बेटा 9 o'clock तो मीन्स शार्प 9 o'clock। ठीक है, लेट नहीं होना बेटा क्लास में, ऐसे ना तो आपको कोई कंसेप्ट क्लैरिटी होगी कि क्या करवाया मैम ने, क्या नहीं करवाया। ठीक है बेटा, z की वैल्यू फाइंड होगी, तो मैं अभी पूछती हूँ माइक ऑन करवा के, किसी एक स्टूडेंट की टर्न आएगी, फिर हम w की वैल्यू फाइंड करेंगे उसके बाद। ठीक है बेटा, प्लीज ये मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि बेटा टाइम पे आओ, क्योंकि मैं अटेंडेंस कभी भी ले सकती हूँ। हो सकता है बेटा मैं स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर अटेंडेंस ले लूँ, हो सकता है बेटा मैं अटेंडेंस लेते टाइम बीच में अटेंडेंस ले लूँ, हो सकता है बेटा जी मैं एंड में अटेंडेंस लूँ। मैं बेटा कभी भी स्क्रीनशॉट लेके आपकी अटेंडेंस ले सकती हूँ। ठीक है, तो बेटा जी आप लोगों ने टाइम पे एंटर करना है। ठीक है, रजत, रजत बेटा माइक ऑन कीजिए। रजत इज देयर? सार्थक, हाँ जी सार्थक। यस मैम, मैम z की वैल्यू 3 है। z की वैल्यू क्या आई, 3। वेरी गुड बेटा, z इज 3। ठीक है, अब बेटा फाइंड करनी है हमने w की वैल्यू। बेटा w की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन चूज करेंगे, वी चूज इक्वेशन नंबर 4। बेटा यहाँ पे z की वैल्यू पुट करो, अगर आप z की वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा बेटा आपके पास, 3 + 3 × 3 + w इक्वल्स टू 13। तो बेटा 3 × 3 कितना होता है, 9,
9 प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया 13 के, तो बेटा मेरा डब्ल्यू कितना आ जाएगा 13 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 4। सो बेटा हम लोगों ने फाइंड कर ली वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेटा नोट करते जाना आप लोगों ने साथ साथ में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ, पहले स्टेटमेंट बेटा नोट करते हैं हम लोग। इफ 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5 3 0 6 5 3 0 6 and 4x plus 3y equals to 4x plus 3y equals to 10 16 10 16 minus 8 minus 5 minus 8 minus 5, find x and y, find x and y। ठीक है, अब बेटा चेक करो, अगर आप लोग क्वेश्चन को बेटा चेक करोगे फ्रॉम द क्वेश्चन, इट इज क्लियर दैट बेटा आपके x और y क्या होंगे मैट्रिसेस। x एंड y बेटा हमारे क्या होंगे मैट्रिसेस, क्योंकि बेटा जी 3x प्लस 4y किसके इक्वल गिवन है, गिवन टू 1 मैट्रिक्स, एंड 4x प्लस 3y भी किसके इक्वल है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू अ 1 मैट्रिक्स। नाउ बेटा टू सॉल्व दिस अगेन बेटा जी आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो बेटा, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेना बेटा, बट इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत अप्लाई करने बैठ जाना। ठीक है बेटा, अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएंगी। ठीक है, जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन बेटा जी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन मेथड। नाउ बेटा माय फर्स्ट इक्वेशन इज 3x plus 4y equals to this matrix. Let us suppose this is equation number 1, and beta my second equation is 4x plus 3y equals to 4x plus 3y equals to 10 16 minus 8 and minus 5। नाउ बेटा अगर मैंने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है, आप लोगों को बेटा याद होगा एलिमिनेशन मेथड में हम कोफिशिएंट्स क्या करते थे, कोफिशिएंट क्या करते थे इक्वल। तो बेटा आई कैन मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन विद द 4 एंड सेकंड इक्वेशन विद द थर्ड। बेटा 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 12x प्लस 16y। अब बेटा इस मैट्रिक्स को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, कंसेप्ट ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा 20 12 0 एंड 24। और बेटा सेकंड मेरा मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा 4 इंटू 3 12x प्लस 9y इक्वल्स टू दैट दिस इज इक्वल्स टू 30 माइनस 24। 16 इंटू 3 इज बेटा 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे हमारा आंसर आएगा 48 एंड माइनस 15, 48 एंड माइनस 15। तो नाउ बेटा आफ्टर दैट तो बेटा आप लोग क्या करो, अब क्या करो सब्ट्रैक्शन। बेटा सब्ट्रैक्शन करोगे यहाँ पे कौन सा साइन आएगा माइनस माइनस एंड माइनस। बेटा प्लस 12x एंड माइनस 12x आर कैंसल आउट। 16y माइनस 9y किसके इक्वल आ जाएगा 5y। अब बेटा ये इस साइड हमारी राइट हैंड साइड क्या है, टू मैट्रिसेस 0 12 0 12 0 24 0 24 एंड बेटा यहाँ पे क्या है माइनस माइनस 30 30 48। हेलो मैम, हेलो मैम 7y नहीं आना कहाँ पे बेटा, मैम 7y इज इक्वल टू इक्वेशन। एक मिनट बेटा, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। हाँ सॉरी बेटा सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक हुई, सॉरी बेटा। ओके मैम, ओके
ओके बेटा यहाँ पे क्या आएगा 7y, ठीक है। तो बेटा ये मेरा क्या आ गया अब 7y इक्वल्स टू 30 माइनस 24, तो 24 नेक्स्ट बेटा एलिमेंट क्या था मेरा -15, ठीक है। अब बेटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, अगर बेटा हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा मेरा 7y किसके इक्वल आएगा, -7y इक्वल्स टू बेटा 20 माइनस 30 क्या आ गया -10, 12 माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस, दिस इज इक्वल्स टू 36, 0 minus 48 is minus 48 एंड बेटा 24 प्लस 15 कितना हो जाएगा 39। सो बेटा यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, बेटा आपकी वैल्यू ऑफ y क्या आ जाएगी 1/7, क्योंकि बेटा 7 इस साइड क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाके क्या होगा डिवाइड, 7y इक्वल्स टू -10 माइनस 48, 36 एंड 39। सो बेटा दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो बेटा वैल्यू ऑफ अगर आपके पास y की फाइंड होगी, आइदर यू कैन पुट दिस वैल्यू इनटू अ फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, और बेटा आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो x की, ठीक है। एक तो बेटा पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोग y की वैल्यू चाहे बेटा इक्वेशन 1 में पुट करो, चाहे बेटा जी इक्वेशन 2 में पुट करो, और किसकी वैल्यू फाइंड करो x की। और बेटा हम सेकेंडली कैसे कर सकते हैं कि बेटा हम अगेन कौन सा सेम बेटा जी एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। जहां तो बेटा जी आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हो, आपके पास y की वैल्यू आ गई, ये बेटा आप y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपके पास किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी x की। और बेटा सेकेंडली आपके पास क्या ऑप्शन है, आप बेटा अगेन एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो और फाइंड करो वैल्यू ऑफ x। बी क्विक बेटा, जल्दी से x की वैल्यू फाइंड करो बाय अगेन अप्लाइंग द एलिमिनेशन मेथड। अगेन अप्लाइंग द एलिमिनेशन मेथड का मीनिंग क्या है बेटा, अब आप लोगों ने किसके कोफिशिएंट्स कैंसिल करने हैं बेटा जी, आप लोगों ने x के कोफिशिएंट सॉरी y के कोफिशिएंट्स को क्या करना है कैंसिल। जब बेटा आप लोगों ने y के कोफिशिएंट्स को कैंसिल करना है तो बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, और बेटा सेकंड को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। बी क्विक बेटा, जल्दी से आंसर फाइंड करो और चैट बॉक्स में लिखो बी क्विक। हाँ जी बेटा जी, आ गया आंसर। व्हाट इज द आंसर फॉर